Am I audible? Hello. In the outset, I would like to say my gratitude and thanks to Almighty and to my dear parents, my elders, and those who have emotionally supported my dear friends and my students. My heartfelt thanks to the Central University of Gujarat, the ABVP chapter, especially to Rathod ji and Rajan ji for giving me such a nice platform to interact with such a loud gathering and large gathering. Today, my topic of discussion is emotional intelligence, spiritual intelligence, and its use and application to this particular pandemic situation of COVID-19. My talk will be bilingual. Of course, mostly I'll speak in English. Very rarely I'll switch over to Hindi also. This pandemic had started from Wuhan, China in last November 2019, but it entered India slowly in January 2020, and slowly the severity came into existence in the month of March before the Holi celebration. We all know Holi is celebrated in India from north to south and from east to west. We all celebrate Holi, but due to this fear of COVID-19, mostly we did not celebrate. And the day, that is 22nd March 2020, the first lockdown started, and from that onwards we are being locked down. कोई भी नहीं जानता था ये सिचुएशन हमारे लिए आएगा. ये सिचुएशन सबके लिए नया है. This is an unexpected guest, and we know in our scripture we tell Atithi Devo Bhava, that unexpected guest is also being treated as Lord.
Lord Himself. There are two sides of each coin. Similarly, this pandemic situation has also two sides. One is a very bright side which made us know our potentiality, हमारे औकात हमको पता चल गई. हम लोग जो सोच रहे थे हम चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, हम मार्स में पहुंच रहे हैं, हम जाके मार्स में घर बना लेंगे. कुछ लोग तो सोच लिए थे कि स्पेस में भी एक सिटी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि अर्थ में हमको पॉल्यूशन है, अर्थ को हम खराब कर चुके हैं. अभी स्पेस को खराब करने के लिए हम ठान लिए थे. अभी पता चल गया कि एक छोटा सा वायरस जो कि खाली आंख में विजिबल नहीं है, वो हम लोग सबको घुटने पे ला दिया है. तो क्या है हमारे औकात? तो इससे तो हमारी ब्राइट साइड है कि हम लोग अपने को जान लिए हैं. जो अंधा दौड़ कर रहे थे हम, वी आर रियली रनिंग मैडली आफ्टर मनी, आफ्टर पावर, आफ्टर रिकॉग्निशन, that we came to know that these things are not going to help us in the moment of crisis. Really, I thank God also for giving us this type of condition, and I am praying that each 20 years He should give us this type of condition so that we can remember or we can realize our reality. In this context, I just reminded of one incident that one day one man went to a sadhu to ask him that what should I do in future and how many days I am going to live. The sadhu told that just 8 days you are going to live. Then he came home. He started speaking to everybody nicely. He behaved very politely with others. His total personality had changed. Each moment he was thinking that I should not do anything wrong because I am going to die after 8 days. After 8 days, he went to that same sadhu and asked him, tell me, how long I am going to live? Then the sadhu told, I don't know how long you are going to live. That God only knows. Then that man asked, you told me that after 8 days I am going to die. Yes. You tell me, these 8 days, what have you done? Now, totally my personality had changed. And each moment I was thinking, I am going to die, I am going to die, I am going to die. So, I did not do anything wrong. I did not harm anybody. I did not hurt anybody in my thought, words and deeds. So the sadhu told, the same way every day we are living. That is why we are peaceful. So this particular situation provided us this condition so that we can change our personality. We can change our thought and thinking style. Nextly, the bright side is we were exploiting the environment for anything and everything. Now, all of us could see
nice weather, nice sky, everything nice and clean. Our Ganges becomes so clean. No need of any Ganga cleaning Abhijan. So this is nature, Mother Nature. So I should tell the negative sides also, because we are here today to discuss how are we going to manage the negativity. Yes, the day we came to know that this pandemic is very dangerous, this COVID-19 is very dangerous. That day we had two things in our mind. One is fear, the second one is insecurity. The fear is physical fear, financial fear, fear of food, fear of security, fear about loved ones, fear about other people, fear about the whole universe. What will happen next? Because 24 hours, morning till evening, till midnight, we are going on listening from the media, from the newspaper. Yes, this outbreak, this many people are dying, this many patients, this many COVID positive cases. So, this is the fear, terrible fear. Some could explain it, express it, some could not. कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके एक्टिविटी शो करता है कि हम कितने टेंस्ड हैं, कितने स्ट्रेस्ड हैं. Insecurity. Of course, this insecurity is always there, but we never realized it. This time we could realize that yes, nothing is certain, everything is uncertain. कोई निश्चिंतता नहीं है हमारे पास. Everything depends on God. हम सब उनके हाथ में गुड़िया जैसे हैं. वो जैसे नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं, वैसे नाचना पड़ेगा. वी हैव टू. सो ये जो फियर है, जो इनसिक्योरिटी है, ये इनसिक्योरिटी एंड फियर से सब लोग त्रस्त है. कोई दिखा के स्ट्रेस होता है, कोई नहीं दिखा के स्ट्रेस होता है, कोई बोल के स्ट्रेस होता है, कोई नहीं बोल के स्ट्रेस होता है. इस स्ट्रेस से, इस फियर से हमको कौन सा चीज़ निकाल सकता है? हम ये कंडीशन को, ये सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये मैनेज करने की पहला हिस्सा है कि हम जानते हैं हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंसेस है. एकेडमिक इंटेलिजेंस तो हम देखते ही रहते हैं. कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हो जो एकेडमिकली इंटेलिजेंट है, ये इस टाइप के सिचुएशन को मैनेज नहीं कर सकते हैं. कई साल पहले गोलमैन नामक एक फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट हुए हैं. तो वो बताए हैं कि एकेडमिक इंटेलिजेंस काम का चीज है, लेकिन जीवन में काम में आने का चीज नहीं. दैट मीन्स द एमिनेंट साइंटिस्ट्स, द एमिनेंट बिजनेसमैन, द नोबल laureate are seen to be failure in their life. क्यों?
Why they are failure? They had such nice academic intelligence, but not only academic intelligence will help us to manage this type of situation or to lead a beautiful, peaceful life. So what are necessity of this time of crisis? These are two other intelligence, that is emotional intelligence and spiritual intelligence. We'll know what is emotional intelligence and its component. We have to use our emotions properly. Einstein once said, I quote, नाराज होना अच्छा नहीं है, लेकिन सही समय पे सही मात्रा में नाराज होना जरूरत है, अनकोट। सो हम लोगों को हमारे इमोशन को कैसे यूज करना है उसको देखना है। आज पर गोलमैन, there are 6 components of emotional intelligence. The first one is self-awareness. Second one is self-management. Third one is social awareness. Fourth one is relationship management. Fifth one is effective communication. And the last one is empathy. हमको जानना पड़ेगा ये चीज़ है क्या। सेल्फ अवेयरनेस, हम हमेशा बोलते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम अपने अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इस चीज़ को हम नहीं जानते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये है सेल्फ अवेयरनेस। नॉर्मली हम लोग अपने को बहुत बूस्ट करते हैं नहीं जान के कि हमारे क्या कैलिबर है, क्या पोटेंशियलिटी है। अभी हमको कोरोना बता दिया हमारी कैलिबर क्या है, पोटेंशियलिटी क्या है। दूसरा चीज़ है सेल्फ मैनेजमेंट। जब हम अपने बारे में जानेंगे, अपने को मैनेज करना भी सीख जाएंगे और सीखना भी जरूरी है। कब मैं दुखी होती हूँ, कब मैं सुखी होती हूँ, किस चीज़ मुझे ज़्यादा नाराज करवाता है, किस चीज़ मुझे ज़्यादा दुखी करवाता है। ये जो सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट है, इसके लिए हमको दिन में 5 मिनट तो ज़रूर टाइम निकालना पड़ेगा। अभी 3 महीना हो गया है, हम जान पा रहे हैं what is the quality time and how we can spend time। अपने साथ समय कैसे बिता सकते हैं। हम सबके साथ समय बिताते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ होती है उसके बारे में हम कभी नहीं सोचे। तो इसीलिए हमको 5 मिनट समय निकाल के देखना पड़ेगा कि मेरे क्या कमी है, क्या अच्छाई है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर नहीं सकता हूँ, मुझे किस चीज़ बहुत दुख देता है और किस चीज़ में मैं बहुत आनंदित होती हूँ या होता हूँ। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज सोशल अवेयरनेस। जो इमोशनली रिच है वो लोग सोशली भी रिच है। सोशल मतलब मेरे चारों तरफ हो क्या रहा है। अभी ये जो अंधाधुंध था उसमें हम लोगों को बिल्कुल ही किसी के बारे में सोचने के लिए समय नहीं था, लेकिन अभी हम लौट रहे हैं पुरानी ज़िंदगी को, जहाँ पे हम अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, सबके साथ सबके बारे में बात करने के लिए, हालचाल पूछने के लिए हमारे पास समय है और ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है। हम भाईचारा को फिर वापस ले आ रहे हैं। दैट इज सोशल अवेयरनेस। देन सोशल मैनेजमेंट। अकेला आदमी
सकता है, उसके लिए उसके साथ चाहिए। और साथ कौन देंगे? अभी हम जानते हैं, हर दिन टीवी में आती है, वी हैव कोरोना वॉरियर्स, दोज हु आर हेल्पिंग अस throughout the day, 24 hours of the day they are on and on with us to save us, to protect us. Not only social corona warriors, we have NGOs, we have government, we have all counseling cells. They are continuously telling us, follow these rules, follow social distancing, wear mask, follow hand sanitization. कितने बार बोलते जा रहे हैं, कितने बार बोलते जा रहे हैं। ये अभी हमको करना ज़रूरत है। कुछ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, उनको खाना खिलाने के दायित्व तो हमारी है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमको हाथ जोड़ के बोले हैं कि हर व्यक्ति एक परिवार को अडॉप्ट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन ये एक समय है जब हम दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, ये मौका दिया गया है। नेक्स्ट वन इज रिलेशन मैनेजमेंट। रिलेशन मैनेजमेंट हाउ? पहले तो हमको बिल्कुल पता नहीं था, मतलब मम्मी पापा को भी हर दिन फ़ोन करने के लिए समय नहीं मिलता था, लेकिन अभी लग रहा है कि दे आर ओनली द प्रेशियस वंस। फ्रेंड्स, स्कूलमेट्स, क्लासमेट्स, दे आर ओनली द प्रेशियस। वी हैव टू ट्रेजर देम। That is relation management. Children, parents, brothers, sisters, relatives, friends, all should move together. United we stand and divided we fall. There are so many incidents to prove this. Last, the effective communication and empathy. हम लोग सबके साथ अच्छा से बोलना जरूरी है। इसके लिए वेदों में भी बोला गया है, अनुद्वेगंकरं, भगवत गीता में बोला जाता है, अनुद्वेगंकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत्। प्रियं ब्रूयात् सत्यं ब्रूयात् न ब्रूयात् अप्रियं सत्यम् अनृतं प्रियं च न ब्रूयात्। ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम अपने बातों में किसी को हर्ट करना जरूरी नहीं है, तो क्यों हर्ट करते थे हम? और उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था, फिर भी हम करते थे अभी। लेकिन हम इस कोरोना की काल में ये चीज़ सीख गए। नेक्स्ट इज एम्पैथी। बहुत दुख लगता था ये न्यूज़ सुन के कि लोगों को दिल्ली से भगाया गया है, रास्ते में अपने परिवार के साथ पैदल में चल रहे हैं, खाना नहीं पीना नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके लिए खाना, उनके लिए रहना, उनके जाने के लिए साधन भी जुगाड़ करके दिए हैं। ये एम्पैथी नहीं तो क्या है? हम लोगों को भी घर में बैठ के उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। हमको पता है कि वी कैनॉट
go to them because there is a risk of corona positive. So social distancing को मानते हुए हम बहुत कुछ कर सकते, क्योंकि हमारे पास ईश्वर सामर्थ्य दिए हैं. दैट इज एम्पैथी. द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. ये थोड़े से ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस से ऊपर जाना है, जहाँ पे हम वही सोचेंगे कि भगवान की जो उपनिषद की वार्ता है, एक हम बहुश्याम, आई वॉज वन, आई बिकम मैनी, टू लव एंड टू बी लव्ड. अपने को प्यार करने के लिए और दूसरे को प्यार देने के लिए और दूसरे से प्यार पाने के लिए भगवान सर्वव्याप्त हुए हैं. सो जब सब में भगवान है तो किसको हम अलग करेंगे, किसको हम बोलेंगे कि ये मजदूर है और किसको हम बोलेंगे कि ये कर्मचारी है. मैं भी दूसरे स्टेट में आके काम कर रही हूँ. हाँ, हो सकता है कि मेरा जॉब मजदूरी नहीं है, लेकिन वो लोग भी काम कर रहे हैं तो उनको मजदूर बोलने की क्या ज़रूरत है. उनको क्या हम भाई बहन नहीं बोल सकते? उनको क्या वो इतना दिन 3 महीना खाना नहीं खिला सकते थे हम? उनको भगा दिया, अपने स्टेट में चले जाओ. जो आए थे दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट को डेवलप किए हैं, उनको हम भगाए कि हमारी डेवलपमेंट हो गया है, तुम चले जाओ अपने स्टेट में, जब हम कोरोना के काल में पड़े हैं. सो यही है मानविकता. इज दिस द ह्यूमैनिटी? कांट वी फीड when we have so much of extra? So spiritual intelligence वही बोलता है कि पहले इसमें भी सेल्फ अवेयरनेस है, एंड दैट इज हायर सेल्फ अवेयरनेस. मतलब अपने को जानो, नॉट ओनली मैटेरियली, स्पिरिचुअली. हु आर यू, हु एम आई? दिस इज द निरंतर खोज है, निरंतर एंड चिरंतन खोज. यही चीज को हम भूल जाते हैं, तभी हम कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं, और ये जो गड़बड़ कर बैठते हैं उसको कभी ना कभी ईश्वर संभालते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं उनके सृष्टि ऐसे नष्ट हो जाए. नेक्स्ट वन इज होलिस्टिक विजन. हर चीज को हम प्रेजेंट में नहीं देखेंगे, उसका पूरा देखेंगे कि इसका क्या कारण है, ये क्यों हुआ है, इसका क्या इफेक्ट है. ये हर चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है हमारे अंदर की जो फियर है, हमारे अंदर की जो इनसिक्योरिटी है, वो नहीं रहेगी. सब हम ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे. सब हम the wish of Almighty will leave everything. Then the life will be enjoyable. Each moment will be peaceful. Every moment we can feel the grace of Lord if we leave everything. Complete surrender. That is being visionary and value-added visionary. हम लोग सब देखते हैं कि ये कोरोना की नेगेटिव इम्पैक्ट भयंकर है.
इसी से हमको पॉजिटिव ढूंढना है. दिस इज नॉट ए चैलेंज, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो. कंपाशन, इमोशनल इंटेलिजेंस में मैंने एम्पैथी बोली थी, सिंपैथी है, एम्पैथी एंड कंपाशन. हमारे पास कंपाशन होता तो हम वो मजदूर लोगों को मजदूर बोल के नहीं बोलते कि चले जाओ अपना स्टेट. हर लोगों को, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को हमको सम्मान देना चाहिए. मैत्र अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र करुणा एव च, निर्ममो निरहंकार, सर्व समा दुख सुख क्षमी. कृष्ण जब भगवान को पूछे थे कि आपको कौन प्रिय है, भगवान ये क्वालिटीज दिए थे कि यही क्वालिटीज के लोग मेरे प्रिय है. संतुष्टम सततम योगी सदात्मा दृढ़ निश्चय, मयर्पितो मनोबुद्धि यह मे भक्ता समे प्रिय. तो ये है कि हम सर्व प्राणी में ईश्वर दर्शन करना, सर्व प्राणी को अपने जैसे देखना, उनके साथ अपने जैसे बिहेव करना ही कंपैशन है, यही ही धर्म है. हमको लगता है कि ये आदमी खराब है, ये आदमी अच्छा है, ये सिचुएशन अच्छा है, ये सिचुएशन खराब है. कोई खराब नहीं, कोई अच्छा नहीं. एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी. सब चीज वही बनाए हैं. जिस दिन हम बोल देते हैं कि ये चीज खराब है, दैट मीन्स वी आर ब्लेमिंग द क्रिएटर. Are we so powerful to blame the creator who is omnipresent, omniscient and omnipotent? जिस दिन हम बोल देते हैं ये खराब है, उसी दिन हम ब्लेम करते हैं क्रिएटर को, जो हम सबको क्रिएट किए. क्योंकि हम जब बोलते हैं ये पेन खराब है, दैट मीन्स हम वो मैन्युफैक्चरर को ब्लेम करते हैं. बोलते हैं ये साड़ी खराब है तो मैन्युफैक्चरर को ब्लेम करते हैं. तो जब हम सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, जब हम कुछ इवेंट को ब्लेम करते हैं, दैट मीन्स द क्रिएटर ऑफ दैट इवेंट इज बीन ब्लेम्ड. इसी में हम कितने बड़े गलती कर बैठते हैं. यदि ये चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे, तभी मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आएगा. वो प्रॉब्लम हो सकता है बहुत बड़ा दिखे, लेकिन वो हमारे लिए आशीर्वाद बन जाएगी, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी. जैसे धर्मवक युधिष्ठिर जी को पूछे थे कि ये संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, और उत्तर में था कि आदमी मरेगा, ये सत्य है, लेकिन वो कभी नहीं सोचता है, वो भूल जाता है. यही आश्चर्य है. हम सब पहले भी जानते थे कि हम मरेंगे, पैदा हुए हैं तो मरेंगे, और जब हमारी मरना है तभी मरेंगे, उससे पहले नहीं, उससे बाद में नहीं. जो हमको भुगतना है वो भोगेंगे.
whatever suffering we have to undergo, will definitely undergo. उसको कोई बचा नहीं सकता. हो सकता है हम प्रेयर करते रहेंगे तो सहने के लिए हमको ईश्वर शक्ति दे देंगे, लेकिन वो चीज़ होना ही होगा और होते ही होके ही रहेगा. So we all should remember the truth. तभी हमारे ऊपर विपदा आपदा आती है. और मुझे लगता है ये जो हम याद रखेंगे with humility, with obedience in our life, जब हमको मिली है समय, वो समय की सदुपयोग हमको करना है, एंड दैट टू इन ए क्रिएटिव वे, इन ए पॉजिटिव वे. तभी ईश्वर भी खुश होंगे, तभी सब लोग खुश रहेंगे भी. हम लोग हमेशा सोचना चाहिए कि जो फंडामेंटल वाई क्वेश्चन है, वो वाई क्वेश्चन को हम हमेशा पूछते रहेंगे. Why have I come to this earth? Why my birth is? Why my birth is? तो हमको पता चल जाएगा हमारे जीवन की लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन की क्या अचीव करने के लिए हम पैदा हुए थे. ये ऑफकोर्स शंकराचार्य ने भज गोविंदम में इतने अच्छे से बताए हैं. भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुमक्रुम करणे. जब समय आ जाएगा तब कोई आपको रक्षा नहीं कर सकता है. ये मटेरियल चीज़ें या रनिंग आफ्टर द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी विल नॉट हेल्प व्हेन द टाइम विल कम. ओनली गोविंद नाम ही केवलम, दैट ओनली विल बी हेल्पिंग अस to cross this bhavasagara. So we should be always grateful to God for each and every situation what He has given. Change the thought process, the thinking process. अभी हम सोच रहे थे कि हम ऐसा कर लेंगे, 5 महीना में हम घर बना लेंगे. ओके, कोरोना आई है ना, 5 महीना में हम घर नहीं बना सकते, लेकिन अंदर की जो अच्छाई है उसको तो पनपा सकते हैं. 10 महीना में मुझे फॉरेन ट्रिप करना था. क्या फॉरेन ट्रिप करेंगे? अंदर की ट्रिप करिए, मेडिटेशन में बैठिए, अंतर्गामी होइए. देखेंगे कि फॉरेन जाने के आनंद से 1000 times मोर आनंद, मोर ब्लिस all of us will get. All of us should use this time for positivity. माइंड प्रोग्रामिंग करिए, पॉजिटिव ऑटो सजेशन देते रहिए, क्योंकि जब हम जो बोलते हैं वही होता है. वो हमको बहुत पहले से उपनिषद भी बोलता है, यद भवम तद भवति. आज यू थिंक सो यू आर. हमारे अंदर की पावर हमको पता नहीं होती है. जब हमको कोई बताता है कि यू कैन डू दिस थिंग्स, देन वी कैन डू. सो सिमिलर थिंग वी कैन
स्पीक टू आवर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन शुरू करिए। मैं देखती हूँ कि हमारे जो इंडियन लाइफस्टाइल है, वो इंडियन लाइफस्टाइल में हम शुरू करेंगे जीना, तो मुझे लगता है जो फियर, जो इनसिक्योरिटी, जो डिप्रेशन, ये सब है, ये धीरे धीरे चले जाएगा। जैसे हम सुबह उठते हैं तो अपने हाथ को देख के बोलते हैं, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थिते गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। पहला चीज, हम बेड के ऊपर बैठ के हमारे हाथ में तीनों देवी को दर्शन करते हैं। उसका मतलब दिन भर जो मैं करूँगी वो आपके लिए ही करूँगी। सर्वम ईश्वरम प्रीत्यर्थम, एवरीथिंग टू प्लीज गॉड। यदि यही सोच लेके हम शुरू करते हैं, फिर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी डिटेल में, जब घर साफ करते हैं, सोच सकते हैं जब मैं घर साफ कर रही हूँ, मैं अंदर की मैल, नेगेटिव क्वालिटीज़ को साफ कर रही हूँ, तो वन फाइन डे वी विल फाइंड दैट all my negativity, all my bad qualities are being cleaned up. Then we go to bath and do our prayer. Again, each work in our Indian lifestyle is devoted to the Almighty. जब हम हर क्षण उनके बारे में सोचते रहेंगे, तो काहे का फियर, काहे का इनसिक्योरिटी। जब हमको रखने के लिए एक रखवाला है, तो हम काहे के डर रहे हैं। सब उनके हाथ में डाल दिए हैं, तो क्यों हम डरेंगे। दूसरा चीज होती है, हम खाना बनाते हैं और वो खाना बनाते हुए हम सोचते हैं ये खाना मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए बना रहा हूँ, और ऑल पॉजिटिव क्वालिटीज उसमें डालते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग डालते हैं। जिस दिन हम सोचेंगे कि ये खाना मैं ईश्वर के लिए बना रहा हूँ, उस दिन वो खाना नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाता है। और आप जानते हैं प्रसाद कभी नुकसान नहीं करता है, वो हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नॉट ओनली फिजिकल बॉडी, इट हेल्प्स मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, क्योंकि खाद्य से ही मन बनता है। जैसे अन्नम ऐसे मन, ऐसे वचन, ऐसे कर्म। तो जब हम खाना बनाते हैं उस समय पे हमारे थॉट्स भी ईश्वर अर्पण होना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनि और पूर्वजों ने हमको बता के गए हैं। हम ये भाग दौड़ वाला जिंदगी में सब भूल गए हैं। चलते हैं होटलिंग में, कौन खाना बनाएगा, बाहर का खाना खा लेते हैं, जानते नहीं हैं वो क्या सोच के खाना बनाया है। तो ये सब हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में आता है। और जब हम रात को सोने जाते हैं, हम फिर वही करचरणं कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसवापराधं विहितं अविहितं वा सर्वमेतत्
क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो बोल के सोते हैं। और दिन में जितने लोगों से मिलते हैं ये भगवान की स्वरूप सोच के मिलने के लिए यदि हम शुरू करते हैं तो मुझे नहीं लगता है हमारे ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम जैसे रहेगी। तो ये तो सिर्फ कोरोना के लिए मैंने कोरोना के संदर्भ में बोला जा रहा है, लेकिन ये खाली कोरोना के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये हमारी लाइफस्टाइल होना चाहिए। हमारे पास एकेडमिक इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस रहना चाहिए, तभी लाइफ एक सुंदर, एक मधुमय जर्नी होगी, यात्रा। हमको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिमान हमेशा है। जब सर्वशक्तिमान है, why fear? He tells always, why fear when I am there? जब वो ये वाणी बोल चुके हैं तब हम किससे डरेंगे? जो होना है वो तो होते रहेगा, हम उसको मना नहीं कर सकते। होने को टालने के लिए हमारे पास एक अस्त्र है, ये है ईश्वर प्रेम, ईश्वर नाम। तो ये जो पैंडेमिक के सिचुएशन है, दिस पैंडेमिक सिचुएशन हैज ब्रॉट all of us into a common platform wherein we have to reflect upon and think that what is real, what is the reality of life, what are we supposed to do, why have we come here. These are the basic questions जो कि शंकरा अपने भजगोविंदम में बताए हैं। मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कहाँ से आया हूँ? Where have I come from? Where to go? कहाँ जाऊँगा? क्या करूँगा? मेरा लक्ष्य क्या है? जब तक ये पता नहीं, ये बेसिक क्वेश्चंस की आंसर्स नहीं मिला है, तब तक हम स्थिर नहीं हो सकते हैं। आज पर स्वामी विवेकानंद उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधत। मेरा काम क्या है? मेरा काम सोशल सर्विस है। दैट सोशल सर्विस इज ओनली दैट the service to mankind is service to God. यही तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है कि मानव सेवा माधव सेवा है, सबको प्रेम, सबकी सेवा। यही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। When भगवान उपनिषद में बोलते हैं, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, मतलब we are all the son of immortality, but we have to realize it, and that realization only will come from practice. Not by just telling or not by just speaking. It will come through practice. And all of us are in that journey of perfection. I don't know
Maybe some are in the beginning, some are in the middle, some are at the end. But we are in the path. We are traversing in the same path. No one knows who will reach when. लेकिन एक मौका हमको मिला है कि फिर हम अपने बारे में सोचे. द हायर सेल्फ अवेयरनेस. दूसरे के बारे में सोचे, दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें. ये मौका हमको भगवान दिए हैं. दिस इज गिवन बाय मदर नेचर टू बी बैक टू नेचर. To be back to nature means we should be pure, unsullied, innocent. Not the covering, but pure means totally pure. Then only we can achieve the goal of this life. We can achieve or realize the chance given to us in the form of corona, in the form of pandemic. So I think my time is going to be over. So lastly, I pray to God that He has given this situation and He should show the way to utilize this chance constructively, positively, spiritually, so that we can uplift ourselves and uplift others staying with us, staying around us. That is my earnest prayer to the Almighty. At the end, I must thank to everyone for a patient hearing, and thanks to the organizer for giving me such an august gathering, and my thanks to my friend Dr. Bandana Jha for bringing me out of my cell to this audience. Lastly, thanks to the Central University Gujarat ABBP chapter, Nisag ji and Raj ji. Namaskar. Namaste to all of you. Thank you. Thank you.